Students, in this video we will solve question number 4. And what is question number 4? Find 10 rational numbers between minus 2 upon 5 and 1 upon 2. Okay, now in order to find 10 rational numbers, मतलब आप ये देखो, this is known as density property. It is known as what? Density property of rational numbers. Density, what is the meaning of density property of rational number? Density property of rational number means what? Between two numbers, between two rational numbers, you can find another rational number. Is that clear? So in these two, between these two rational numbers, we have to find another rational number. Okay, how many rational numbers? 10 rational numbers you have to find between minus 2 and minus 2 by 5 and 1 by 2. Between minus 2 upon 5 and 1 upon 2, you have to find 10 rational numbers. Okay, so let us find. First of all, the basic rule is that we have to make the denominators of both the rational numbers same. ओके, तो पहला रूल हमारा क्या होता है? दोनों जो डिनोमिनेटर हैं रैशनल नंबर के उनको सेम करना. सो मेकिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ माइनस 2 by 5 एंड 1 by 2 सेम. We have, देखो हमें क्या मिलेगा? नाउ सी हाउ टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. हमको ये तो पता चल गया कि हमको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, बट हाउ डू वी मेक द डिनोमिनेटर सेम? हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम कैसे लेंगे? वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. ओके, सो what are the denominators here? 2 and 5 are the denominators, so we will take LCM of them. So 2 ones are 2. Okay, 5 will be written as it is. 5 ones are 5. So LCM of 2 and 5 will be what? This will be equal to 10. Is that clear to you? Okay, so this means what? हम minus 2 by 5. So what should be multiplied to 5 to get 10? ओके, आई थिंक आप सबको एलसीएम लेना अच्छी से आता है. इन प्रीवियस क्लासेस यू नो हाउ टू टेक एलसीएम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 5 टू गेट 10? सो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 में? 2. एंड सेम थिंग वी मल्टीप्लाई दिस विद द न्यूमरेटर. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? minus 4 upon 10. This means what? This means what? Your rational number minus 2 upon 5 can be written as what? Minus 4 upon 10. Is that clear? Now again 1 upon 2. Now see, what should be multiplied with 2 to get 10? हम 2 में क्या multiply करें कि हमें 10 मिल जाए? We know that 2 5s are 10. Okay, so 5 will be multiplied with 2. In the same way, 5 will be multiplied with numerator also. So it will become what? 5 upon 10. So this means what? This means what? Minus 2 upon 5 is equal to minus 4 upon 10 and 1 upon 2 is equals to what? 5 upon 10. I hope आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. So our very first step to find rational numbers between any two rational number is what? First of all, make the denominators सेम. हमको दोनों को डिनोमिनेटर सेम करने हैं. नाउ यू कैन सी दैट इन बोथ द रैशनल नंबर्स द डिनोमिनेटर्स आर व्हाट? 10. डिनोमिनेटर इज सेम. देयरफॉर नाउ वी कैन प्रोसीड नाउ टू आवर सेकंड स्टेप. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी आवर सेकंड स्टेप? हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? अब मैं आपको ये रफ में एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ सी इट वेरी केयरफुली. Minus 2 by 5 has been written as what? Minus 4 by 10, and 1 by 2 has been written as what? 5 by 10. So this means what? हमको minus 2 by 5 and 1 by 2 के बीच में 10 rational numbers निकालने हैं. This means what? We have to find 10 rational numbers between what? Minus 4 by 10 and 5 by 10. Is that clear to you? Because we have expressed minus 2 by 5 as minus 4 by 10 and we have expressed 1 by 2 as 5 by 10. Is that clear? क्योंकि हमने दोनों का एलसीएम सेम लेके इसको ऐसा लिख दिया. ओके, सो इफ़ यू सॉल्व, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप देखेंगे इसको फर्दर, सो 2 2s are 4, 2 5s are 10. अगेन इट विल बी वॉट? minus 2 by 5 and 5 1s are 5, 5 2s are 10. So again it will be what? 1 by 2. This means what? Minus 2 by 5 can be written as minus 4 by 10 and 1 by 2 can be written as 5 by 10. Is that clear? Now
In order to find 10 rational numbers between minus 2 and 5, this means we have to find 10 rational numbers between minus 4 by 10 and 5 by 10. Is that clear? अब एक बहुत सिंपल और जो जनरली अडॉप्ट किया जाता है मेथड, मैं वो आपको बता रहा हूँ. ओके, देयर आर मैनी मेथड्स टू फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, और 11, 12, 20 यू कैन फाइंड एज मैनी एज रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. एंड द ईजीएस्ट वन मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली जो हायर क्लासेस में भी जो फॉलो की जाती है, दैट इफ़ वी हैव टू फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, अगर हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, देन मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय 11. मतलब एक ज़्यादा से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. इफ़ वी हैव टू फाइंड 10 रेशनल नंबर, वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 11. ओके, इफ़ वी हैव टू फाइंड 20 रेशनल नंबर, देन वी विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 21. दिस मीन्स जितने हमें रेशनल नंबर चाहिए है, हम एक ज़्यादा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस मीन्स व्हाट? वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर -4 एंड डिनोमिनेटर 10. ओके, हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 11 से. इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी कैन राइट, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टू फाइंड 10 rational numbers, to find 10 rational numbers, okay, we will multiply -4 by 10 and 5 by 10 by 11 upon 11. ओके, सो वाई 11 अपॉन 11 आई एम राइटिंग? बिकॉज आप ये देखो कि ये 11 अपॉन 11 ही से तो मल्टीप्लाई किया है. अगेन 5 बाई 10 भी 11 अपॉन 11 से ही मल्टीप्लाई किया गया है. ओके, सो दैट इज वाई आई हैव रिटन कि -4 बाई 10 एंड 5 बाई 10 को हमने 11 बाई 11 से मल्टीप्लाई किया. सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस. सो -4 बाई 10 कैन बी रिटन एज वॉट? -4 बाई 10 इंटू 11 अपॉन 11. ओके, सो -4 इंटू 11 विल बी वॉट? -44. 4 11s are 44. Again 10 into 11. If you multiply 10 into 11, you will get 110. Okay. Similarly, हम 5 upon 10 को कैसे लिख सकते हैं? 5 upon 10 you will multiply this by 11 upon 11 and you will get what? 5 into 11. 5 11s are 55 and 10 11s are what? 110. Is that clear? So this means, अब देखो, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 10 rational numbers. Okay, so 10 rational numbers between -2 by 5 and 1 by 2 is what? So how we will start? Now see, this means 10 rational numbers between -2 by 5 and 1 by 2 means what? 10 rational numbers between -4 by 10 and 5 by 10. This means 10 rational numbers between -44 by 10 and 55 by 10. Is that clear to you? So कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? -43 by 110. Okay, -43 by 110, -42 by 110. Okay, -41 by 110, then -40 by 110, then -39 by 110, then -38 by 110, -37 by 110, then -36 upon 110. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 more number we required. So -35 by 110 and finally -34 by 110. Okay, so इफ़ यू सॉल्व ऑल दिस, अगर आप फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ऑल दीज रेशनल नंबर्स आर कमिंग इन बिटवीन -2 by 5 and 1 by 2. सो व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस कंसेप्ट? इस कंसेप्ट की देखिए बेसिक थीम क्या थी? वी हैव टू फाइंड आउट 10 rational numbers between -2 by 5 and 1 by 2. So what we did, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे उनको हमने सेम किया बाय टेकिंग एलसीएम. ओके, एलसीएम जो था वो हमारा जब 10 आया, सो वी मेक दैट बोथ द डिनोमिनेटर्स एज 10 एंड -2 by 5 जो -2 by 5 था उसको हमने एक्सप्रेस किया एज -4 by 10 एंड वी हैव एक्सप्रेस्ड 1 by 2 एज वॉट? 5 by 10. इज दैट क्लियर टू यू?
नाउ फर्दर उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्या देखा कि देन टू फाइंड द 10 रैशनल नंबर्स वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 11 से। वाई, बिकॉज सिंस वी हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर्स सो वी विल मल्टीप्लाई दैट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 11। हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। इज दैट क्लियर टू यू? आफ्टर दैट जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया सो वी विल गेट व्हाट, -44/110 एंड 55/110। सो वी कैन find out 10 rational number between -2/5 and 1/2 as what, -43/10 110, -42/110 and so on, और कहाँ तक जाएगा ये, -34/110। even if you want to find see even if you want to find फर्दर रैशनल नंबर्स, तो और आप अगर आपको मान लीजिए 15 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे, फर्दर आप -34 के बाद आगे बढ़ सकते हैं, -33/110, -32/110, -31/110, -30/110 and so on. Okay, so there are many rational numbers between this -44/110 and 55/110. Is that clear? One more thing I want to tell you that, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि see because there are many rational numbers between any two rational numbers, so answer may vary. Okay, जो टेक्स्ट बुक का आपका आंसर है और ये जो फाइनल आंसर है ये दोनों वेरी हो सकते हैं because there are many rational numbers between any two rational numbers. Is that clear to you? So that is why I have found it like this. Okay, and this method is used in generally used in future also. Generally हम यही मेथड है जो है वो अप्लाई करते हैं फ्यूचर में भी। ओके, और इस मेथड में किसी भी कंफ्यूजन का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता। ओके, दैट इज़ वाई आई हैड एक्सप्लेन दिस मेथड टू यू। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गई होगी। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।